Hi, good morning everyone. Welcome to our new exercise 8.3 part 1. Here, before solving 8.3, so we will discuss some concept. In this 8.3, you have to do multiply two algebraic expressions and divide two algebraic expression. Okay, because in your last exercise you have done addition and subtraction of algebraic expression. That was addition and subtraction. Now further you have to do multiplication of algebraic expression and division of algebraic expression. अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन में थ्री कंडीशंस होती हैं, या मोनोमियल और मोनोमियल को मल्टीप्लाई करो, या मोनोमियल को पॉलिनोमियल एक प्रॉपर जो 3-4 टर्म्स की algebraic एक्सप्रेशन होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, या एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करो. तो ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं मल्टीप्लाई की. अब यहाँ पे है फर्स्ट, जैसे मेरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमियल्स. 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे मैंने आई हैव टेक द वन एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x, 2y, 3z. So what you will do? You will multiply the numerical part separately and variable part separately. So when I multiply numerical part separately, 3 into 2 into 3 gives me 18. But when I multiply variable part, all variables are different. No like term, no like variables are there. So we write as it is. Here 18xyz is my answer. Okay. Sometimes this polynomial comes in the form of question, like find the volume of a cuboid with sides 5x square y, 7xy and 2xy square units, and volume of cuboid is length multiplied by breadth multiplied by height. So you have to multiply all three monomials. Now condition is same. First you multiply numerical part with numerical part. 5, 7, 2 gives me 70. Now x square, here power is 2. Now when you multiply the variable part, so variable never be multiplied, only we apply the exponent rules there. If base is same, you just add the powers, like here x is to power 2, x is to power 1, x is to power 1. You add the all powers, 2 plus 1 plus 1, write a base once. Similarly y 1 1 1, when you add that gives you y 3, and my required answer is 70x4 y cube, and volume always measure in cubic units, so we write it cubic units. Next is if there is a condition of multiplication of a monomial by a polynomial. अगर मेरी polynomial equation आ जाए और एक मेरी monomial term आ जाए, तो उन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करना है. तो मेरे पास 2 मेथड है, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक है वर्टिकल मेथड. वर्टिकल मेथड बहुत रेयरली हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज़ करते हैं. अब हॉरिजॉन्टल मेथड में है 3x मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7. So what you will do? First 3x multiply by first term, then 3x again multiply by second term, and 3x again multiply by third term. So one by one जितनी भी आपकी ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी सभी टर्म को बाहर जो टर्म अवेलेबल है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो. सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, ब्रैकेट के बाहर जब आपका नेगेटिव साइन होता था तो नेगेटिव को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर देते थे. बट यहाँ पे अगर साइन की जगह आपके पास कोई प्रॉपर टर्म आ जाए तो उस टर्म को 1 बाय 1 सभी टर्म्स के साथ जो ब्रैकेट के अंदर अवेलेबल हैं सबके साथ 1 बाय 1 आपने मल्टीप्लाई करना है. एंड रिमेंबर ऑल वन थिंग, व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, यू मल्टीप्लाई द साइन ऑल्सो, because there must be a condition that if outside term accompany with the negative sign and inside term accompany with the positive or negative, and when you multiply the term, sign also will be multiplied with each other. Like here both are positive, 3x multiplied by 2x square plus 3x multiplied by minus 5x and 3x multiplied by minus 7. Sign also be multiplied, and you make the group in the bracket and mark positive sign between that. So this numerical part will be multiply numerical part, base written as ones and power is added, like 6x cube minus 15x square minus 21x. that is my required answer. पर अगर यही मुझे वर्टिकल मेथड में करना है तो मैं कैसे करूँगी.
2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 मल्टीप्लाई 3x। पहले तो आपने 3x को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा 21x। फिर आपके पास माइनस 6x मल्टीप्लाई बाय 3x दैट इज़ माइनस 15x स्क्वायर, क्योंकि x के साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होगा, उनकी जस्ट पावर ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x1 था, दोनों पॉजिटिव टर्म्स थी। 2 इंटू 3 6 x स्क्वायर एंड x2 प्लस 1 3 6x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर माइनस 21x इज माई रिक्वायर्ड आंसर। सो वन मोर क्वेश्चन इन दिस, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। एक आपको फिगर दी गई है, एक रेक्टेंगल अंदर है और एक रेक्टेंगल बाहर है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है मुझे इसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अंदर वाली जो ब्रेथ गिवन है 4 और लेंथ गिवन है पॉलिनोमियल इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और बाहर वाली रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और ब्रेथ गिवन है 3x। तो आपने क्या करना है, आउटर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या होगा, आउटर वाले एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3x 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अंदर वाला एरिया 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 3x को इस ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 9 27 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, 3x इंटू 7x 21x स्क्वायर, 3x इंटू 4 12x माइनस 4 मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर माइनस माइनस पॉजिटिव 12x देन माइनस पॉजिटिव माइनस 28, 4 7 28। देन यू हैव टू अरेंज द लाइक टर्म्स। जो आपकी लाइक टर्म्स नहीं है उसको एज इट इज़ आंसर में लिखेंगे, और जो आपकी लाइक टर्म्स है उनको अरेंज करके ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, 21 माइनस 16 गिव मी 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, 12 प्लस 12 गिव मी 24x माइनस 28 एज इट इज़। सो दैट इज़ द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास टर्म आ जाए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, अब आपको 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। उसमें आपके बेसिकली 3 मेथड्स आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड है, वर्टिकल मेथड है, और वन मोर मेथड है रेक्टेंगुलर मेथड। First, understand the concept very well. I have done this question only for understanding the concept. Okay, so here if 3x plus 4, x cube plus 4x square minus x plus 6, I have to multiply this algebraic expression with this algebraic expression. Okay, तो जिस एक्सप्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है उसको एज इट इज़ रहने देना, और जो आपका फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है उसकी एक एक टर्म 1 बाय 1 आपने उठानी है, और जो सेकंड आपने फिक्स की थी ब्रैकेट उसकी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ग्रुप बनाओगे। पहले तो आप एक ग्रुप बनाओगे कि 3x मल्टीप्लाई विद होल ब्रैकेट 3x मल्टीप्लाई विद दिस सेकंड होल पॉलिनोमियल प्लस 4 देन ऑल्सो मल्टीप्लाई विद द होल पॉलिनोमियल। अब आपका जो कंडीशन था मल्टीप्लाई मोनोमियल विद पॉलिनोमियल, वो वाला रूल अप्लाई होगा। अब 3x 1 बाय 1 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा विथ साइन ऑल्सो। इसी तरह से प्लस 4 विल बी मल्टीप्लाई ईच टर्म दैट इज प्रेजेंट विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में अंदर आपकी जितनी भी टर्म है उसके साथ 4 भी मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे जैसे आप एक एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जा रहे हो तो पुट इन द ब्रैकेट, क्योंकि जब आप ब्रैकेट में रखोगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ओके, तो ये आपका सॉल्व करके आया 3x4 प्लस 12x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4x क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 24। नेक्स्ट वी हैव टू गो फॉर ग्रुपिंग। लाइक टर्म्स को अरेंज करो, ऐड करो, देन दैट आंसर विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। वी विल लुक एट दैट 3x4 x रेज़ टू पावर 4 की कोई भी लाइक टर्म नहीं है। एक्स क्यूब की है 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की है माइनस 3 प्लस 16, और आपकी x की है 18x माइनस 4x और 24 एज इट इज़। 12 प्लस 4 16x क्यूब माइनस 3 प्लस 16 13x स्क्वायर, 18 माइनस 4 14x प्लस 24। सो दैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। अब यही अगर मुझे वर्टिकल मैथड से करना है तो वर्टिकल मैथड में कैसे करना है आपको,
एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस एक्स प्लस 6 जो आपने फिक्स किया था पॉलिनोमियल, उसको आपने फर्स्ट रो में लिख देना है, और जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है उसको आपने नीचे वाली रो में प्रेजेंट कर देना है, 3x प्लस 4। अब 4 सबसे पहले ऊपर वाली प्लस 4, साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 ऊपर वाली सारी टर्म से आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। 4 6 24, 4 माइनस एक्स माइनस 4x, 4 4 जा 16x², 4x³ 4x³। अब 3x को जब आपने ऊपर वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब आपने क्या करना है, जब सेकंड रो में लिखना है मल्टीप्लिकेशन जहाँ नीचे, तो लाइक टर्म्स के अंडर लिखना है। इसमें ये कुछ नहीं है कि जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते थे कि यहाँ पहला वाला छोड़ दो और बाकी सारे लिख लो, ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, जब आप एक सेकंड टर्म को ऊपर वाली पूरी पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप लिखोगे कैसे, लिखोगे सिर्फ लाइक टर्म्स के अंडर। अब जैसे 3x इंटू 6 है, तो ये मेरा आ गया प्लस 18x, और 18x लाइक टर्म x के अंडर ही लिखा जाएगा। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट टर्म होती तब वो 24 के अंडर आती। नेक्स्ट इज 3x माइनस एक्स माइनस 3x², 3x मल्टीप्लाई प्लस 4x² 12x³ देन 3x मल्टीप्लाई बाई x 3। अब इसकी कोई भी लाइक टर्म ऊपर नहीं है तो इसको हम थोड़ा साइड पे लिख लेंगे ओपन में। नाउ वी ऐड द टर्म्स, 3x² प्लस 24 एज इट इज़, 4 प्लस 12 16, 16 माइनस 3 13, 18 माइनस 4 इज 14x। तो दैट इज़ अ वर्टिकल मैथड। अब आ जाओ आपका रेक्टेंगुलर मैथड। एक और थर्ड मैथड है रेक्टेंगुलर मैथड। रेक्टेंगुलर मैथड में क्या करना है, जो आपने पॉलिनोमियल फिक्स किया था पहले तो उसकी टर्म काउंट कर लो, कितनी 4 टर्म्स है, तो आपने 4 कॉलम्स बना लेने। तो जिस पॉलिनोमियल से आपने डिवाइड करना है उसकी टर्म्स देखो, उसकी टर्म 2 थी, बाइनोमियल था, तो आपने वो जो कॉलम थे आपके 4 कॉलम, उसको 2 रोज में आपने डिवाइड कर देना। अब आपने मार्क कर देना 3x प्लस 4 साइन, डोंट फॉरगेट टू राइट, ओके, x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 6। अब यहाँ पे देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, जब एक रो और एक कॉलम एक पोजीशन में मिलते हैं उसको हम सेल बोलते हैं। यू आर ऑलरेडी डन इन कंप्यूटर्स, व्हेन वन रो एंड वन कॉलम मीट एट वन पॉइंट, कंबाइंड पॉइंट, जहाँ पे ये 2 रो और कॉलम आपस में मीट कर रहे हैं उसको हम सेल बोलते हैं। अब ये वाली रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जहाँ पे मिले तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। 3x मल्टीप्लाई बाई एक्स 3x4। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4x³ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 3x² फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 18x। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा 4x³ सेकंड रो सेकंड कॉलम 16x² सेकंड रो थर्ड कॉलम माइनस 4x देन सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम 24। अब आपने लिखना कैसे, ये तो आपका आ गया। अब जो जो बॉक्सेस में आंसर आया, डोंट फॉरगेट टू अकम्पनी द साइन। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना। 3 यहाँ से आपने पहले फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट लिख लिए, फिर सेकंड रो के सारे एलिमेंट लिख लिए, फिर आपने अरेंज किया कि लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया, 12x³ 4x³ x² x एंड 24। सो आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है आपका डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको डिवाइड करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो उसकी भी 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि अगर आपको मानो एक सिंगल टर्म के साथ सिंगल टर्म ही डिवाइड करनी है, या आपको एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल टर्म के साथ डिवाइड करना है, या आपने दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है कि आपके डिवीज़न में दोनों पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। अगर तो आपकी कंडीशन आ जाए डिवीज़न ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि एक सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड करना है, तो आपने पहले जैसे मेरे पास था 51 p² q r² 17 p q r, तो 17 3s are 51, न्यूमेरिकल पार्ट अलग से डिवाइड होगा। अगर आपको बड़ा कोई नंबर आ जाता है तो आप HCF निकाल के भी उसको लोएस्ट फॉर्म में बना सकते हो। नेक्स्ट है PQR, 3 वेरिएबल्स हैं, PQR लिख लिए। अब जो आपके 3 वेरिएबल्स हैं, जो अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपोनेंट लॉ, अगर बेस सेम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर के बेस की पावर न्यूमरेटर की बेस की पावर से सब्ट्रैक्ट होगी। P2 - 1 Q 1 - 1 R 2 - 1। तो माई रिक्वायर्ड आंसर इज 3PR। अब है कि अगर आपको पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करना है, लाइक 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x डिवाइड बाई 2x, तो आपने क्या करना है,
ये देखो पहले इस फॉर्म में लिख लिया 8x³ प्लस 4x² प्लस 2x डिवाइड बाई 2x। डिवाइड बाई 2x का मतलब है कि ये 2x सभी टर्म का डिनोमिनेटर है। आप जैसे एलसीएम निकालते थे, आपके पास अगर अलग अलग फ्रैक्शंस दिए होते थे, आप एलसीएम निकालते थे, जब सभी का डिनोमिनेटर सेम हो जाता था उसको कॉमन लिख के फिर न्यूमरेटर को ऐड करते थे। अब हमने उसका उल्टा मूव करना है। उल्टा मूव करना है कि ऑलरेडी हमारा डिनोमिनेटर है, मैंने सेपरेट कर देना है टर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब 8x³ अलग से 2x सबके नीचे चला जाएगा, 8x³ बाई 2x, 4x² बाई 2x, 2x बाई 2x, क्योंकि इस कॉमन 2x का मतलब क्या है? कॉमन 2x का मतलब है कि ये सारी टर्म्स का अलग अलग डिनोमिनेटर सेम है। तो अब सेपरेटली आपने इसको सॉल्व किया। 2 4 जार 8, x3 माइनस 1, 2 2 जार 4, 2x2 माइनस 1 एंड 2 कैंसिल, x1 माइनस 1, यहाँ पे x0, 2x एंड 4x²। 4x² 2x, अगर किसी टर्म की पावर 0 होगी तो 1 के इक्वल है। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट है मीन, जो आपका बिगर पोर्शन आता है, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल को ही पॉलिनोमियल्स के साथ कैसे आप डिवाइड करोगे? अब अगर मेरे पास सपोज मैंने एग्जांपल्स लिए, अगर मेरे पास ये दिया 48x³ माइनस 74x² माइनस 11x प्लस 12, ये मेरा एक बड़ा पॉलिनोमियल है, इसको मैंने इस वाले पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करना है, तो मैं इसको डिवीज़न मेथड से जाऊँगी। अब डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं कि जो सी टर्म आपको डिवाइड करनी होती तो वो हमने इस वाली ब्रैकेट के अंदर रखी और जो डिवाइज़र है उसको बाहर रखा 8x माइनस 3। अब डिवीज़न का रूल क्या है कि ये मेरा पूरा डिवाइज़र है। ओके, तो पहले आपने देखना है कि इसको, जो आपकी ये पॉलिनोमियल है, जो भी आपका वेरिएबल इसमें यूज़ हो रहा है उसको डिसेंडिंग पावर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग पावर मीन्स जैसे यहाँ पे x की हायर पावर है, लोअर पावर देन कांस्टेंट, तो इस तरह से आपका पॉलिनोमियल अरेंज होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है, जो आपका पहला वाला टर्म है 48x³, तो आपको एक ऐसी टर्म के साथ इस 8x, इसकी फर्स्ट टर्म पे ही कंसंट्रेट करना है। अभी 8x को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 48x³ आ जाए, प्लस 48, साइन भी साथ में काउंट करना है, प्लस 48x³ आना चाहिए अगर आप 8x को किसी ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे। देखो 8x माइनस 3, तो सिर्फ अभी मैंने फर्स्ट टर्म पे कंसंट्रेट करना है 8x को। 8x को मैं ऐसी कौन सी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 48x³ आ जाए। पहले तो मैंने चेक करना है कि क्या 48 8 के टेबल में आता है। यस, 6 8 आर 48 और 8 6 आर 48, न्यूमेरिकल नंबर तो मिल गया। अब हमें चाहिए x³, तो यहाँ पे एक x है तो हमें कितने x चाहिए और 2 और x चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो मेरा नंबर है, इमेजिनरी नंबर जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 6x²। यहाँ से मेरी आइडेंटिफिकेशन होगी कि मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मेरी पहली वाली टर्म रिमूव हो जाए। तो पहली वाली टर्म तभी रिमूव होगी जब एग्जैक्ट वो आएगी। तो 6x² जब मैंने 8x के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 48x³, तो वो मैंने 48x³ के नीचे लिख दिया। उसके बाद अब जो बाकी का डिवाइज़र था अब उसको भी ऐसे नहीं छोड़ना। तो अगर आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूल यही है, पॉलिनोमियल को जब मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी टर्म भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -3 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो गिव्स मी -18x²। तो जो भी x² की लाइक टर्म है उसके नीचे आपने अरेंज कर देना। ओके, अब आपने जब सेम टर्म अरेंज कर दी, 8x माइनस 3 को 6x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, तो आपके पास आ गया प्लस 48x³ माइनस 18x²। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक टर्म आपकी सब्ट्रैक्शन की कंडीशन आ गई। सब्ट्रैक्टिंग की कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका ये वाला साइन होगा आपने चेंज कर देना, जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो सेम टर्म है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, 0 आ जाएगा। -74 प्लस 18 गिव मी -56x² एंड वी कैरिड नेक्स्ट टर्म -11x। अब नेक्स्ट टारगेट है मुझे -56x² हटाना है, तो मैं 8x पे कंसंट्रेट करूँगी कि 8x को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास माइनस भी आए और 56 भी आए। अब ये तो इसका दैट मीन्स मुझे तो कोई नेगेटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 के टेबल में 56, 8 7 56 होता है, तो -7 न्यूमेरिकल पार्ट तो मुझे मिल गया।
अब एक्स स्क्वायर चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे सिंगल एक्स है, तो मीन्स मुझे एक और एक्स चाहिए, तो मैं -7x के साथ फर्स्ट वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एग्जैक्टली -56 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। बट मेरे पास डिवाइज़र में एक और टर्म भी है, तो मैंने ये वाली टर्म को डिवाइज़र की नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स रह गई हैं उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। -7x मल्टीप्लाई -3 गिव मी +21x। नाउ यू सब्ट्रैक्ट द टर्म, so -11 -21 give me -32x, next term is +12, so next my target is remove -32x। अब 8 के टेबल में 32 आता है, 8 4s are 32, पर मुझे नेगेटिव चाहिए तो -4 आ गया। अब x एक ही चाहिए था, ऑलरेडी मेरे पास x अवेलेबल है, तो दैट मीन्स मेरा नेक्स्ट नंबर है -4। जो मैं यहाँ पे नंबर आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि किस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया 6x के, उसको साथ साथ ऊपर भी लिखना है। जो सा साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो -7x साथ में आएगा, इसी तरह से -4 भी यहाँ पर आएगा। तो 8x -3 मल्टीप्लाई बाय -4 गिव मी -32x +12। सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट ऑल टर्म विल बी कैंसल, सो माई रिमाइंडर इज 0। तो ये जो क्वेश्चन आया 6x² -7x -4, जो यहाँ पे नंबर मेरे फाइंड आउट हुए थे वही आपने क्वेश्चन में भी ऊपर लिखने, तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। पर कई बार अगर मेरी ऐसी टर्म आ जाती है जहाँ पे मेरे पास ट्राइनोमियल आ जाए डिवीज़न में, उस कंडीशन में क्या करोगे? जैसे यहाँ पे है x4 -23x² + 49x + 4। अगर ये वाली टर्म है, इसको x² + x -2 के साथ आपको डिवाइड करना है। टारगेट वही है कि मुझे पहले x4 पे टारगेट करना है और इसकी फर्स्ट टर्म पे टारगेट करना है कि x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x4 आ जाए। तो ऑब्वियसली क्या है x², क्योंकि सिर्फ x ही चाहिए, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं चाहिए। ऑलरेडी 2x है, मुझे 2 और x चाहिए, तो x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। अब बचे डिवाइज़र की बाकी टर्म +x और -2, तो वो भी ये वाला जो आपका इमेजिनेशन नंबर था x² उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² मल्टीप्लाई x गिव मी x3। अब ऊपर कोई भी x³ के कोई लाइक टर्म नहीं है, तो लाइक टर्म नहीं है तो उसको हम थोड़ा साइड पे ओपन एरिया पे लिख लेंगे। नेक्स्ट -2 × x² -2x² की लाइक टर्म है, तो वही राइट अंडर -2x² अंडर x² लाइक टर्म्स। So now you subtract, sign will be changed, downward expression that is cancelled, and -23 + 2 gives me -21x²। other two terms should be right as it is, और यहाँ पे जो आपका +x³ था वो माइनस में चेंज होगा, क्योंकि हमेशा नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज होते हैं। अब इसको लिखेंगे कहाँ पे? इसको यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था पॉलिनोमियल को हमेशा डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल में अरेंज करना है, तो x³ x² से पहले आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -x³। अब नेक्स्ट टारगेट है मुझे x³ रिमूव करना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि मेरे पास -x³ आए, नेगेटिव भी आए, और ऑलरेडी 2x है और एक और x चाहिए, तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर आ गया इमेजिनेशन -x। जो पहले x² आया था उसको साथ साथ क्वेश्चन में भी लिखना है। जैसे नेक्स्ट नंबर मैंने फाइंड आउट किया -x, तो -x भी क्वेश्चन में लिखेंगे। अब -x को x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो -x³ आ गया, और बाकी जो डिवाइज़र में रेस्ट ऑफ द टर्म है उसको भी -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक टर्म्स के नीचे हम अरेंज कर देंगे। +x -x गिव मी -x², -2 and -x give me +2x. So this x³ will be cancelled, -21 + x² because we are changing the sign, so that will be changed. So here -21 + x² -20x² +49 -2 +47 and +4. Now we check for the another -20x²। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है -20x² हटाना है। x² तो ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ -20 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? -20 मेरा क्वेश्चन में भी चला जाएगा। -20 को x² के साथ किया, -20x² आ गया, फिर -20 को x के साथ किया तो -20x, फिर -20 को -2 के साथ किया तो +40। तो साइन चेंज हो गए, ये सारे ये सर्कल हो जाएं क्योंकि हमने इनको चेंज किया है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, ये तो आपका कैंसिल हो गया। 47
प्लस 20 67x और प्लस 4 माइनस 40 माइनस 36। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर बचता है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि हम फर्दर नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मेरी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिल गई मुझे कि आगे x का वेरिएबल ख़त्म हो गया क्वेश्चन में, तो मुझे आगे नहीं जाना। तो कोई जो भी मेरा टर्म बचता है, और टर्म तो कोई है नहीं है, तो ये वाला मेरा रिमाइंडर काउंट होगा और वो मेरा क्वेश्चन। तो ये है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीज़न। अब है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 8.3 आपका पार्ट 1 है। 4x माइनस 9 और x माइनस 6। अभी जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ कैसे करना है, पहले 4x इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 9 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आपका आंसर आया 4x² माइनस 33x प्लस 54। इसी तरह से नेक्स्ट था आपका, अब यहाँ पे देखो ट्राइनोमियल्स हैं, दोनों टर्म ट्राइनोमियल्स की हैं, तो उसमें भी आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट टर्म को पूरी ब्रैकेट के साथ, देन सेकेंड टर्म को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, देन थर्ड टर्म पहले वाली जो ब्रैकेट में है थर्ड टर्म, उसको पूरी ब्रैकेट के साथ आपने पहले अरेंज करना है। फिर आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, 2a² 2a² 7a 2a² माइनस 5। देन यहाँ पे प्लस लेना है, क्योंकि यहाँ पे -5 को मुझे साइन के साथ भी करना है, तो आप इसको दो तरह से भी ले सकते हो। चाहो तो आप नेगेटिव साइन बाहर ही रहने दो, 5a को सभी के साथ मल्टीप्लाई करके फिर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तब साइन चेंज करो, या आप इसको पॉजिटिव कंसिडर करके -5a को a² में करके यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, -5a इंटू 7a माइनस 5a इंटू 5। अगर आप इस तरह से ब्रैकेट में नेगेटिव साइन अंदर लेके जाओगे सो देयर विल बी नो चांस ऑफ साइन मिस्टेक। सो 3a² प्लस 3 इंटू 7a प्लस 3 इंटू माइनस 5। कैलकुलेट करके मेरे पास टर्म आ गई 2a4 प्लस 14a³ माइनस 10a² माइनस 5a³ माइनस 35a² प्लस 25a। 3a² प्लस 21a माइनस 15। लाइक टर्म्स अरेंज की, दैन योर आंसर इज 2a4 प्लस 9a³ माइनस 42a² प्लस 46a माइनस 15। Similarly, your C part also, when you multiply first term multiply by second whole bracket, second term multiply second whole bracket, and your required answer is according to exponential law, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होंगी, वेरिएबल की पावर, सेम वेरिएबल की पावर ऐड हो जाएंगी और बेस जो है सेम वेरिएबल एक ही बार लिखा जाएगा और जस्ट पावर ऐड हो जाएंगी। तो माई रिक्वायर्ड आंसर है x6 माइनस x² y प्लस x4 y² माइनस y3। सिमिलरली डी पार्ट में इस ट्राइनोमियल को आपने आगे जब नेक्स्ट ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 बाय 1 फर्स्ट टर्म पहले होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म ऑल्सो होल ब्रैकेट के साथ, देन यहाँ पे चाहो तो आप प्लस लिख लो, वो ज़्यादा इजी होगा, प्लस देन माइनस C4 ब्रैकेट में, तो ये सारी इस होल ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब 1 बाय 1 आपने सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, you must write in the bracket, it will be easier for calculation, and after calculation when I solve that there is no like term, अगर कोई भी like term नहीं है तो जो आपका आंसर आए वो as it is ही लिखना है। सिमिलरली ई पार्ट में भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी आपकी कोई भी like term नहीं है, तो आपका एज इट इज़ मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा -3x6y5 माइनस 15x7y5। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल की पावर्स ऐड हुई हैं और न्यूमेरिकल पार्ट से मल्टीप्लाई हुआ है और साइन भी साथ में मल्टीप्लाई हुआ है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर नेगेटिव ही आएगा, -3x5 y6 माइनस 15x6 y6 x³ y² z एंड 5x4 y² z। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपने मोनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड किया, 6 2 12 x4 minus 2 according to exponent law 1/2 x²। Next also 108 divided by 9, 9 12s are 108, a raised to power 2 minus 2, b 4 minus 2, and required answer is 12b²। Similarly in your C part when you divide 9 19s are 171 minus 19 x² y is your required answer। Next है, अगर आपको डिवाइड करना है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, a² प्लस 15a प्लस 56 a प्लस 8, तो पहले आपने ये जो जिसको डिवाइड करना था वो अंदर रखा और जिससे डिवाइड करना है डिवाइजर को बाहर रखा। तो पहला टारगेट क्या है, मुझे a² रिमूव करना है। अरेंज चेक कर लेना है कि क्या ये मेरा जो भी वेरिएबल यहाँ पे पॉलिनोमियल में वो हायर टू लोअर पावर जाना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरा टारगेट है a² को रिमूव करना, a ऑलरेडी है
मुझे एक और ए चाहिए, तो a प्लस 8 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, तो a को मैंने क्वेश्चन में भी लिख दिया। ये आ गया a स्क्वायर प्लस 8a, क्योंकि सेकेंड डिवाइज़र को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a जो a वाली लाइक टर्म है उसके नीचे आपने लिखना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया 7a प्लस 56 कैरी डाउनवर्ड। So next target is remove 7a. a already is there, only 7 is missing. अब इस टर्म को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 7a प्लस 56, एग्जैक्ट वही आ गई, रिमाइंडर 0 आ गया। a प्लस 7 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली जब आपने इसको किया 4z क्यूब प्लस 14z स्क्वायर प्लस 6z को z प्लस 3 के साथ डिवाइड किया। पहला टारगेट यही था 4z क्यूब, z था, मुझे 2z और चाहिए और 4 चाहिए, तो मेरे पास जो इमेजिनेटरी नंबर फाइंड आउट हुआ वो 4z स्क्वायर। तो इसका मतलब है z प्लस 3 को आप 4z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4z क्यूब प्लस 12z स्क्वायर, आफ्टर सब्ट्रैक्शन 2z स्क्वायर प्लस 6z कैरी डाउनवर्ड। नेक्स्ट टारगेट इज टू रिमूव 2z स्क्वायर, सो वी मल्टीप्लाई z प्लस 3 इंटू 2z, बिकॉज 2z अगर z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2z स्क्वायर देगा, और 2 इंटू 3 दैट मीन गिव्स मी 6z। आफ्टर सब्ट्रैक्शन रिमाइंडर इज 0 एंड क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे नंबर फाइंड आउट किए हैं मल्टीप्लाई करने वाले 4z स्क्वायर और प्लस 2z, दैट इज योर रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट अगर आपका ट्राइनोमियल आ जाए और ये वाला आपका एक्सप्रेशन आ गया, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ट्राइनोमियल में भी हमने फर्स्ट वाली टर्म को ही हमेशा टारगेट करना है कि फर्स्ट वाली टर्म को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरी फर्स्ट टर्म रिमूव हो जाए। तो 10e क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 10 और एक और ए चाहिए, तो मेरा जो नंबर मैंने फाइंड आउट किया दैट विल बी 5a, जिसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने में 10e क्यूब आ जाएगा। तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं उसको भी आपने उस जो आपने नंबर फाइंड आउट किया था उससे आपने मल्टीप्लाई करना है ताकि लाइक टर्म्स फर्दर सॉल्व हो सके। तो जैसे ही अरेंज किया आपका आ गया 10e क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 25a, आफ्टर सब्ट्रैक्शन 14a स्क्वायर माइनस 21a प्लस 35। नेक्स्ट टारगेट था मुझे 14a स्क्वायर चाहिए था प्लस 14a स्क्वायर, a स्क्वायर ऑलरेडी था, 2 7 14, तो सिर्फ 7 मुझे नंबर मिला, तो 7 आपने क्वेश्चन में भी लिखना है। तो 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 14a स्क्वायर माइनस 21a प्लस 35, एग्जैक्ट सारी टर्म मिल गई। तो सब्ट्रैक्शन के बाद सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 5a प्लस 7 इज माई रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपने इसी तरह से करना है, दो आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, फर्स्ट टर्म को पहले सारी ब्रैकेट के साथ, फिर सेकेंड टर्म को सेकेंड सारी ब्रैकेट के साथ। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके जब ब्रैकेट्स ओपन की 10x5 y3 20x4 y3 माइनस 6x4 y4 माइनस 12x3 y4, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसमें कोई भी फर्दर लाइक टर्म नहीं है तो आपने एज इट इज़ ये आंसर लिख देना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, माइनस 5/6 u5 v3 प्लस 1/4 u स्क्वायर v स्क्वायर। अब इसको डिवाइड करना है आपने 6 u स्क्वायर v स्क्वायर से। तो पहले आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि यहाँ पे मेरा मोनोमियल है, तो मोनोमियल को हम एक्चुअल डिवीज़न के मेथड से बहुत रेयरली जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल हो फिर हम डिवीज़न मेथड से जाएंगे। अब मैंने सिर्फ यही करना है कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है उसको न्यूमरेटर में लिख देना है और इसको डिनोमिनेटर में। जैसे अभी मेथड बताया था मैंने आपको, अगर सिंगल मोनोमियल हो डिवीज़न में तो उसको पहले आपने सबके डिनोमिनेटर में अरेंज कर देना। तो 6 4 स्क्वायर u स्क्वायर v स्क्वायर को पहले इस टर्म के नीचे लिखेंगे, फिर इस टर्म के नीचे, क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर है। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब है कि दोनों टर्म के नीचे आएगा। और जब आपने इसको सॉल्व किया 6 6 36 वेरिएबल्स को एक्सपोनेंट रूल से सॉल्व किया, यू विल गेट द आंसर माइनस 5/36 u क्यूब v प्लस 1/24। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।